براہ کرم ہمارے لیے دعا کریں کہ خداوند ہمیں ہماری گرجا گھر دے تاکہ ہزاروں لوگ وہاں بیٹھ کر خداوند کا کلام سن سکیں۔ ہم اس وقت ایک چھوٹی جگہ پر ہیں اور مستقبل میں ایک بڑی جگہ خریدنا چاہتے ہیں۔ اگر اب چاہیں تو ہماری مدد کے لیے براہ کرم +923198794893 پر واٹس ایپ کریں۔ Please pray for us that God gives us our own church so that thousands of people can sit there and listen to the Word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, please WhatsApp on 923198794893. مگر آج تک جب کبھی موسیٰ کی کتاب پڑھی جاتی ہے، موسیٰ کی کتاب سے مراد پرانا عہد توریت کی 5 کتابیں، پہلی والی 5 کتابیں جو بائبل مقدس میں ہیں ان کو موسیٰ کی کتاب کہا گیا ہے، جن کا رائٹر لکھنے والا بزرگ موسیٰ۔ تو غور سے سنیے اور سچ، مگر آج تک جب کبھی موسیٰ کی کتاب پڑھی جاتی ہے تو ان کے دلوں پر پردہ پڑا رہتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پڑھنے والے، اس کتاب کو پڑھنے والوں کی بات ہے۔ جب کبھی بھی موسیٰ کی کتاب پڑھی جاتی ہے تو ان کے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ سنو غور سے۔ اس سے مراد ہے کہ وہ کلام کو پڑھتے تو ہیں لیکن کلام کی سچائی تک وہ نہیں پہنچ پا رہے، پردہ پڑا ہوا ہے۔ کلام کے اندر جس کا ذکر ہے، الہام کے اندر جو موجود ہے، وہ اس سے ناواقف۔ ان کی جب بھی وہ پڑھتے ہیں موسیٰ کی کتاب کو تو کیا ہے؟ ان کے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، یعنی پڑھتے تو ہیں لیکن سچائی سے بہت دور۔ اس سے کیا آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے؟ کہ کلام صرف پڑھنا نہیں ہے، اگرچہ پڑھنا بڑی اچھی بات ہے لیکن صرف پڑھنا نہیں۔ پڑھنے والے تو بتھیرے ہیں لیکن سمجھنے والے اور سچائی تک پہنچنے والے بہت کم ہیں۔ یہ آج بھی پرابلم ہے لوگوں کے اندر، چرچ میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے کہ بائبل تو بچے پڑھتے ہیں لیکن ان کے دلوں پر آج بھی پردہ پڑا ہوا ہے۔ وہ اس کی روشنی تک نہیں پہنچ پاتے، اس کی سچائی تک نہیں پہنچ پاتے، اس کی گہرائی کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے۔ اس لیے آج بھی یہ مسئلہ موجود ہے، لیکن ٹیکسٹ میں یہودی قوم کی بات ہو رہی ہے۔ تو آؤ آگے بڑھے، اگلی آیت کیا کہتی ہے؟ لیکن جب کبھی ان کا دل خداوند کی طرف پھرے گا تو وہ پردہ اٹھ جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی بھی وہ خداوند کی طرف پھریں گے، خداوند سے مراد یسوع مسیح، اس کا اکلوتا بیٹا۔ جب کبھی وہ خداوند کی طرف پھریں گے، اس کی طرف لوٹیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ پردہ جو پڑا ہوا تھا ان کی عقلوں پر، ان کی سمجھ بوجھ پر، وہ سچائی سے ناواقف، اس سے دور، لیکن جب کبھی وہ سچے دل سے خداوند کے طالب ہوں گے،
उसकी तलाश करेंगे और रूह कुछ के वसीले से खुदावंद यीशु मसीह की पहचान उनको मिल जाएगी और वो उसके पास आ जाएंगे तो वो पर्दा जो पड़ा हुआ था वो उठ जाएगा। आमीन। मतलब क्या है इसका? उनकी अक्लें रोशन हो जाएंगी, वो सच्चाई तक पहुंच जाएंगे, वो सच्चाई को पहचान लेंगे और शरीयत में जो रूह काम करता है, शरीयत में जो खुदा है वो उसको पहचान लेंगे। अक्लों पर से पर्दा उठ जाएगा, लेकिन कब? जब वो खुदावंद की तरफ फिरे। यीशु मसीह ने क्या कहा? मांगो तो तुमको दिया जाएगा। मांगने के साथ हमारी रूहानी भूख, तलब, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। जब हम रूहानी जिंदगी में कोशिश करते हैं, एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, तलाश करते हैं, ढूंढते हैं, तो वादा क्या है? ढूंढोगे तो पाओगे। अगली बात क्या है? दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन। किनके लिए? जो रूहानी तौर पर भूखे और प्यासे, जो तलाश करते हैं, जो खुदा के तालिब हैं, जो खुदा के मुतलाशी हैं और एफर्ट करते हैं, दुआ करते हैं, स्टडी करते हैं, खुद को बेहतर करने के लिए, खुदा के करीब लाने के लिए, वो संजीदा, उनके लिए ये पता है कि वो अशुद्ध होंगे। आमीन। अपनी जिंदगी पर जरा गौर करो कि आप क्या उसके तालिब हैं? क्या उसकी तलाश करते हैं? क्या रूहानी जिंदगी में आप संजीदा? और अगर जवाब नो है तो फिर याद रखिएगा कि हम बड़े खतरनाक मसले में हालत में। तो इसलिए जब कोई खुदा की तरफ रजू लाएगा, और ये सिर्फ टेक्स्ट में सुनो से सिर्फ यहूदियों की बात नहीं है, बल्कि सबके लिए इसकी इतलाक सब पर होती है। जब कोई भी खुदावंद की तरफ रजू लाएगा, आज आप देखिए हमारे बच्चे, हम अपने घरों में जाएंगे और गौर करें कि हमारे बच्चे सारा दिन गलियों में आवारा फिरते रहते हैं, बुरी सोहबत में बहुत सा वक्त रातों को देर में घर आते हैं, आवारा बच्चों के साथ बुरी सोहबत, बुरी संगत। लेकिन संडे के दिन वो कभी भी चर्च में आने की जरूरत को महसूस नहीं करते। इसको जरा गौर से देखो। क्यों? क्योंकि उनके दिल खुदावंद से दूर, उनके दिलों के अंदर दुनियादारी और जिस्म की ख्वाहिशें भरी हुई। मुझे बताओ, आप में से, हाजरीन में से कितने लोग हैं जो संडे को चर्च की रफाकत के लिए बेचैन कि हम जमा होंगे, कलीसियाई रफाकत, और जमा होकर हम मिलकर वर्शिप करेंगे, मिलकर खुदावंद को जो हमारा जिंदा खुदा है उसको इज्जत देंगे, उसको जलाल देंगे, और फिर उसके कलाम की सच्चाइयों को हम सीखेंगे और सुनेंगे और अपने दिलों की प्यास को उनसे बुझाएंगे। कितने हैं इस पर गौर करो। बड़ी मुश्किल से चंद लोग ही होंगे जो ऐसे जज्बात और ऐसी भूख रखते हैं, वरना तो ज्यादा लोग जो है उनको कह के लाना पड़ता है चर्च में। वो भी 2-3 संडे कमांगे तो फिर जाके कितने एक संडे आके चर्च हासिल आएंगे। वो भी कह के भाई जी तुसी आई नहीं, भाई जी कहना मैनू फलाना काम पै गया ते बड़ी छाल मारनी ते कहना साडे घर परौने आ गए ते या असीं परौने टुर गए।
खैर मैं ये नहीं कहता जाना भी पड़ता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं आम जो उज़र हम पेश करते हैं जबकि ऐसा होता नहीं है, मसला और कुछ होता है। बहुत से उज़र, बहुत से बहाने हमारे पास चर्च ना आने के। क्यों? इसलिए कि हम सच्चे दिल से उसकी तरफ रुजू नहीं लाए। जब कोई लाएगा तो वो पर्दा जो है वो उठ जाएगा, वो सच्चाई को जान लेगा और सच्चाई उसको आजाद कर देगी। आमीन। लेकिन तब तक वो क्या है, जकड़ा हुआ। तो वो बच्चे हमारे चर्च नहीं आएंगे। आप देखिएगा वो गलियों में, बाजारों में, और अगर उनकी रूहानी हालत को बिब्लिकली देखा जाए तो नापाक लोगों के साथ सुअरों का खाना खाने वाले अलूता और नापाक हमारे वो बच्चे। हमने कभी गौर नहीं किया कि हमारी औलाद जहन्नम में जा रही है। हमारी अक्लों पर पर्दा पड़ा हुआ है, ना समझी का पर्दा, हमारी अक्लों पर पर्दा पड़ा हुआ है, अक्लें बंद हैं, ना समझी का पर्दा है, गुमराही का ये पर्दा है, खुदा से दूरी का पर्दा है, खुदा से नावाकियत का पर्दा है। और अगर मैं इस पे बहुत दफा मैंने कहा कि अगर कोई बड़ा काम करता है तो क्या करे, लेकिन काम खुदा की नजर में मकबूल नहीं ठहराता। वो जाते हैं असी बड़े कामे जी, इसको समझिए। हमें इसलिए अगर फिजिकली जरूरतें हैं, लेकिन तो भी हम जरूरतों के लिए इस दुनिया में नहीं रखे गए। किस लिए रखे गए? भीतर देखो किस लिए रखे गए। हमको रखा है किसी ने, उसका नाम कादर मुतलक है और उसने अपने लिए रखा है। अच्छा, कुछ लोग देखो कितनी गुमराही है, अगर से फिजिकली कहीं किसी हद तक ये फिट बैठ जाते हैं, पुत्र होते चौड़े हम हो जाते हैं, तिया होते बड़े चौड़े हो जाते हैं। पुत्र होते चौड़े क्यों नहीं? ये मेरे बाजू, मेरे पांच, मेरे चार, होता क्या है? अच्छा, औरत देखो, औरत दी भी रियाकारी, धी पैदा होवे औरत जो थे वो भी सुकड़ जाती है, हालांकि खुद भी औरत ही। इतनी गुमराही है ज़हनों पर, सोचों पर। खुद औरत होकर औरत को जन्म देती है, लेकिन खुश नहीं होती है, घट होती है दिली तौर पर। बेटी की पैदाइश देखकर खुश होने वाली। क्यों? क्योंकि पुत्र चाहिए इंसान, और बेटा हो तो बड़े खिड़ के मां प्यो सब। लेकिन सुनो गौर से, क्या होता है, क्या नतीजा? क्यों खुश होते हैं? क्योंकि पुत्र ने कमा के ले होंगे, बाजू बनेंगे, मेरे इन्हें पुत्र ने बाजू बनेंगे, कमा के लाएंगे। लेकिन सुन लो इस बात, अमूमन अक्सरियत से मामला जरा है उलट ही पई। ओ मां बाप ने शर्मिंदगी और जिल्लत और रसवाई का सबब बन कर रहते हैं। कदी औथे लावा दे, कदी औथे दे, और मां प्यो भी पहला उन्हां नूं पालदे ने, फिर अगो नूं लिया के उन्हों, फिर अगो ओदे बच्चियां नूं पालदे फिरदे। ऐ जी हकीकत है। सुनो, हम इसलिए जमीन पर रखे गए हैं कि हमारा खालिक और मालिक जिसने हमें वजूद दिया है, जिंदगी दी है, उसने हमें रखा हुआ है। और रखा क्यों है? ताकि खुदा जो रूह है, अनदेखा खुदा, वो हमेशा देखा जाए। और सोचता इस बात को, इसको समझो। आप इसलिए है अनदेखा खुदा देखा जाए, किनसे? आपसे। आमीन। तो जब कोई रजू लाएगा तो पर्दा उठ जाएगा। मतलब क्या है? अक्लें रोशन हो जाएंगी, कलाम की सच्चाइयों की समझ आ जाएगी। इल्हाम क्या कहता है? पुराने अहद की किताबें, शरीयत की किताबें, नबियों की, अंबियाओं के सहीफों की तालीम और उनमें जिसका जिक्र है, वो सारी बातें हमें समझ में आ जाएंगी। कब? जब यीशु मसीह के पास आ जाएंगे। हालेलुया। ये है हकीकत। क्योंकि सुनो, मूसा जिसका जिक्र करता है उसका नाम यीशु है। ये वो हकीकत टेक्स्ट के
अंदर ये वो हकीकत है, पर्दा उठ जाता है। वो शख्स जान जाता है कि अदन में जो आदम के पास अदन में ठंडे वक्त में आकर रफाकत करता, बातें करता, वो कोई और नहीं है बल्कि यीशु है। और फिर सुनो गौर से, जो मूसा पर चलती झाड़ी में जाहिर हुआ और आवाज दी, ए मूसा इधर आ, पास आ, तो वो कोई और नहीं है बल्कि यीशु है। और जो बादल में था, और जो आग के सतून में था, और जो उनके साथ था, और जो उनके पीछे था, और जो आगे पीछे से घेरे हुए था, हमें समझ में आ जाता है, अक्लें रोशन हो जाती है कि पाक सहीफों में जो हस्ती है वो कोई और नहीं है, खुदा का इकलौता बेटा यीशु है। ये याद रखिए, तो इसको समझिए। इसलिए मुझे एक बड़ा प्यारा गीत है अर्नेस्ट मल का, कि बड़ी प्यारी सुबह सुबह गाने वाला है, बड़ी अच्छी शायरी, उसकी दिल को छू जाती है। वो कहता है, सुबह सवेर आंख खुली तो यीशु था, नींद की मीठी गहराइयों में यीशु था। डर आता है कि यूं को रात को बुरे सपने क्यों ना आएंगे, जब तेरी जिंदगी में यीशु नहीं है तो फिर बुरे सपने, गंदी ख्वाहिशें, रात को सोते हुए भी तू आलूदा, तेरे ख्वाब भी नापाक, तेरी सोचे भी नापाक, और तू गंदे सपने ही देखेगा। लेकिन जिनकी जिंदगियों में खुदा का इकलौता बेटा कलमाए मुजस्सम यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह है, उनकी नींद मीठी और गहरी और पाक होती है। और फिर वो आगे क्या कहता है, चलते फिरते उठते बैठते यीशु था, तन्हाइयों में दुखों में भी यीशु था। और फिर क्या कहता है, उस जलती आग अब्राहम इसहाक याकूब का जिंदा खुदा, मूसा की जलती झाड़ी में यीशु था। हालेलुया। तो पुराने अहद में जो बादल में, जो आग के सतून में, जो जलती झाड़ी में, जो अदन में कोई और नहीं है, वो हमारा यीशु मसीह है। और एक दफा बड़ी खूबसूरत बात। इसलिए गौर से सुनिए, पर्दा उठ जाएगा। कैसे? जब कोई खुदा उनके पास आ जाता है। कलाम में लिखा है, यूहन्ना की अंजील के 8 चैप्टर में यीशु ने कहा, अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम वाकई में आजाद हो जाओगे। हालेलुया। कौन आजाद करे? बेटा आजाद करे। इसलिए जो सच्चे दिल से खुदावंद की तरफ रुजू लाते हैं, उनकी अक्लों को रोशन कर दिया जाता है और पर्दा उठ जाता है। लेकिन कैसे? अगली आयत को साथ साथ पढ़िएगा। और 17 आयत को पढ़ो। और खुदावंद रूह है। क्या मतलब है जी? खुदावंद रूह है। यीशु ने क्या कहा? खुदा रूह है, स्पिरिट ऑफ गॉड। खुदा क्या है? रूह। खुदावंद रूह है। और ये इसके दो मफहूम है। तजस्सुम से पहले यीशु की, यीशु मसीह का मकाम खुदावंद रूह है। और फिर आगे क्या लिखा है? और वही खुदावंद, इसका ये भी मतलब है वो खुदा जो रूह है, तजस्सुम लेकर इस दुनिया में यीशु मसीह की सूरत में हमारे सामने है। आमीन। वही खुदा जो पीछे है, वही खुदा अब जिस्म लेकर तजस्सुम होकर हमारे साथ, हमारे सामने यीशु मसीह खुदा का बेटा, और मर गया और मसलूब हुआ और तीसरे दिन जी उठा और जलाली बदनों में बाप की दाहिनी तरफ है। पर्दा उठ जाता है, समझ आ जाती है, अक्लें रोशन हो जाती है, बाइबल समझ में आ जाती है, इल्हाम समझ में आ जाता
खामोश आ जाता है। और जहां खुदावंद क्या है, रूह। और आगे क्या लिखा है, जहां कहीं खुदावंद का रूह है वहां आजादी है। सुनो गौर से, जहां कहीं रूह, खुदावंद का रूह है, वहां के हालात मुख्तलिफ, वहां की हालत मुख्तलिफ, वहां के लोग मुख्तलिफ, वहां की वर्शिप मुख्तलिफ, वहां की प्रेयर मुख्तलिफ, वहां की इबादत मुख्तलिफ, वहां की कलीसिया मुख्तलिफ। जहां कहीं रूह है वहां के हालात, वहां का माहौल सब मुख्तलिफ होता है। सुनो गौर से, ये असी बनाए ने ये बड़ा इथे मसा, इथे बड़ा रूह, लेकिन लोग आलूदगी और नापाकी से भरे, गंदगी से भरे, तारीकी से भरे। जिस चर्च के बच्चे जिस्मानी ख्वाहिशों से भरे हुए हो, जिस चर्च की औरतें दुआया ना हो, जिस चर्च के मर्द गैर नजातिया ना हो, उस चर्च पर रूह नहीं होता। रूह कहां होता है, इसको समझो। पिछली संडे भी मैंने कुछ आपको बताया था। क्या बताया था? रूहानी आदमी। रूहानी आदमी कौन होता है, इसको समझिए। जहां कहीं किसी भी जगह पर, किसी घर के अंदर खुदा की हजूरी, खुदा की मौजूदगी है, उस घर की हालत और हालात मुख्तलिफ होते हैं। वो पादरी का घर हो, वो एल्डर का घर हो, वो डीकन का घर हो, वो डीकनस का घर हो, वो ईमानदारों के घर हो, जहां कहीं भी रूहुल कुद्स मौजूद होता है। और सुनिएगा, रूहुल कुद्स सिर्फ वहां मौजूद होता है। इन्हू जरा कोट के पल्ले बांध लो, बड़ी पक्की गल जी जेड़ी मैं तुहाडे अगे करन दिया। रूह सिर्फ वहां होता है जिस जमीन पर खुदा के इकलौते बेटे के पाक लहू की बूंदें गिरती हैं और वो उसको पाक करता है। याद रखिए, जो बेटे से नावाकिफ, उसकी जिंदगी में रूह नहीं बदरू होती है। सुन लो, है बिन्यामीन, जो बेटे से दूर नावाकिफ, उसके बहते हुए लहू से धुला नहीं है, ओदे विच रूह नहीं, ओदे विच सिर्फ बद अरवा है। ये याद रखो, रूहुल कुद्स सिर्फ उस जिंदगी में और उस जगह पर जहां बेटे का लहू है, जहां लहू की कबूलियत है, जहां कफारे पर यकीन है, जहां उसकी क्रॉस को माना जाता है और जो उसको उसकी क्रॉस के काम में खुद को शामिल करता है। रूहुल कुद्स वहां होता है। आमीन। एवें ना आंदे जाया करो, इथे रूह है ते ओथे रूह है। नो, रूहुल कुद्स की मौजूदगी की जगह और वो कहां होता है, बिब्लिकली जो नजरिया है वो ये है। और जहां रूह होता है, जिस बंदे में रूह हो, एक कोई रूह नहीं। मैंने पिछली दफा भी कहा कि बीबी गाला भी कटे, लोगों ने आडा ला के पूरे महल्ले ਨੂੰ सताया होवे, रिश्तेदारां ने जो नाप शनाप ते नफरत ते क्रोध ते वो कहे कि मेरे च जी रूह आ गया है। मुझे याद है, ये पिछले दिनों हमारे चर्च की एक बेटी, एक फैमिली, मैं नाम नहीं लूंगा, वो पता लगा उन्होंने घर को पादरी आया और उन्हें कहा कि ऐस बेटी च रूह है। वाह, पता नहीं केड़ा, क्योंकि रूह अरवा और बहुत सी। वो बेटी दूर दूर तक चर्च के साथ या कोई रूहानी नहीं, कोई अच्छा फल नहीं, ये गुमराही। तो इसलिए इसको समझिए कि, और फिर मैं भी आना ना, मैं इसलिए बार बार गल करना कि तुसी पक्के हो जो तुसी आ जाओ। गैर जुबान बोलने वाला शख्स, ये कोई फाइनली बात नहीं है कि उसमें रूह है। बात वो जब बोल रहा था उसको मिली, अच्छी बात है, लेकिन मेरे वो तजर्बे नहीं काम कर रहा है। लेकिन रूहुल कुद्स की मौजूदगी के हालात, माहौल बिल्कुल फर्क। गैर जुबान बोलना अच्छी बात, रूह में दुआ करना अच्छी बात, लेकिन रूहुल कुद्स की मौजूदगी के हालात और हालत वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। और वो क्या है, वह आजादी है। आजादी है। कैसी आजादी? एक तो इसका लिंक जो है ऊपर वाली आयत के साथ है, अक्लें रोशन हो जाती है, पर्दा उठ जाता है। वहां आजादी, किस बात की आजादी? इल्हाम को समझने की आजादी। 66 किताबों के अंदर खुदा का जो कलाम मौजूद है, उसको समझने की उन लोगों में सलाहियत पैदा हो जाती है।
وہ الہام میں یسوع مسیح کو پہچان لیتے ہیں، جسم میں تجسم کی حالت میں وہ اس خدا کو جو روح ہے اس کو پہچان لیتے ہیں، اس کے تجسم سے پہلے کی اس کی حیثیت اور مقام کو بھی پہچان لیتے ہیں کہ یہ وہی ہے۔ آمین۔ جہاں روح ہے وہاں کے حالات اور حالت بالکل مختلف۔ میں ایک ایگزامپل دوں گا جلدی سے۔ سب سے پہلے روح آپ کو بائبل میں کہاں نظر آتا ہے؟ جلدی آنسر دیجیے۔ پیدائش کی کتاب آؤ ذرا کھولو کہ روح جہاں ہوتا ہے تو وہاں کے حالات فضا کیسی ہوتی ہے۔ پیدائش کی کتاب کھولو جلدی سے، پہلا چیپٹر اور اس کی دوسری آیت ہے۔ کیا لکھا؟ اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا۔ اچھا یہ حالت ہے، یہ حالت تھی زمین کی، یا یہ حالت تھی اس وقت، یہ کنڈیشن تھی، گہراؤں کے اوپر اندھیرا اور زمین کیا تھی؟ ویران۔ روح کی موجودگی کے حالات کیسے ہوتے ہیں؟ پھر ہمیں بتایا گیا کہ وہاں کیا ہو رہا تھا۔ وہاں جہاں ویران کی تھی، اندھیرا تھا، پھر ہمیں وہاں پر امید نظر آئی اور ہمیں تسلی ہوئی اور ہمیں وہاں پر نظر آیا کہ وہاں خدا کی روح بھی تھی۔ کیا تھی جی وہاں؟ خدا کی روح۔ پڑھ کے اس کو پوری طرح سے پھر سمجھو۔ اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ خدا کی روح۔ اچھا سنو، حالت کیا ہے؟ زمین ویران، سنسان، یعنی آباد نہیں تھی، غیر آباد۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں زندگی نہیں ہے، سب کچھ ڈیڈ ہے، زندگی نہیں ہے، تاریکی ہے، روشنی نہیں ہے، اور پھر وہاں روح القدس کی موجود ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جہاں روح ہوتا ہے، جہاں بھی خدا بنا کر روح ہے، وہاں کیا ہے؟ وہاں ویران زمین، سنسان زمین میں زندگی اور ہریالی اور شادمانی لوٹ آتی ہے۔ جہاں روح ہوتا ہے تاریکی وہاں سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی عقل روشن، اس کا کردار روشن، وہ شخص پوری طرح سے روشن ہو جاتا ہے، ہر طرح کی تاریکی اس میں سے ختم ہو جاتی ہے۔ بولو دسو پھر کہ جہاں روح ہوتا ہے وہاں کی حالت کیا ہے؟ جی سمجھ آیا کہ نہیں؟ ایویں نہ کہہ دیا کرو اے وچ روح ہے جی، اور کچھ دیر تے روح دی ہے اور بعد جو کوئی اور روح نظر چاہ جاتی ہے۔ یہ روح دا کھیڑ جڑا ہے یہ بالکل گمراہی کی تعلیم ہے۔ روح جہاں رہتا ہے، جس بیٹی کے اندر، جس بھائی کے اندر، جس نوجوان کے اندر روح القدس کی موجودگی ہوتی ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ سب سے پہلا کام ہی یہ ہے کہ جس زمین پر یسوع کے لہو کی بوندیں نہیں تھی وہاں روح آئے گا، کیونکہ یسوع کا لہو اس زمین کی لعنت کو اور اس کے تمام ناپاکی کو پاکیزگی میں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور پھر خدا کی روح اس جگہ پر، اس کی حضوری، اس کی پریزنس اس جگہ پر ٹھہرتی ہے۔ ایسے تو نہیں اندر ساری ناپاکی، بری خواہشیں اور تمام طرح کی برائیاں اور دنیا داری اور تمام بگڑا پن، تمام نکما پن ہمارے اندر، اور ہم کہتے پھرے کہ اس میں روح ہے۔ نو، یہ بالکل غلط۔ روح القدس جہاں ہوتا ہے وہاں کی فضا ناپاک نہیں بلکہ پاک ہوتی ہے۔ وہاں زندگی، وہاں روشنی ہوتی ہے، وہاں روح کا پھل ہوتا ہے، وہاں محبت ہوتی ہے، وہاں پرہیزگاری ہوتی ہے، وہاں حلیمی ہوتی ہے، وہاں ایمانداری ہوتی ہے، وہاں تحمل ہوتا ہے، وہاں خوشی ہوتی ہے۔ جہاں روح القدس ہوتا ہے، اس کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ یہ روح کی کیا ہے؟ موجودگی۔ یہ کیا ہے جی؟ روح کی موجودگی۔ جہاں روح ہے وہاں آزادی ہے۔ جہاں روح ہے وہاں آزادی ہے۔ یہ آزادی صرف عقلوں کا روشن ہونا نہیں،
बल्कि आजादी से मुराद वहां पर गुनाह नहीं है, वहां पर झगड़ापन नहीं है, बंदिशें नहीं है, बल्कि रूह कुद्स की मौजूदगी ने उस शख्स की, उस बहन की, उस भाई की जिंदगी को तब्दील कर दिया। रूह जहां होता है वहां गुलामी नहीं होती, रूह जहां होता है वहां बंदिशें नहीं होती, रूह जहां होता है वहां नापाकी नहीं होती, रूह जहां होता है वहां लानतें नहीं होती, रूह जहां होता है वहां गुमराही नहीं होती है। याद रखिए, जहां भी खुदावंद का रूह है, जिस चर्च का रूह है, उस चर्च के बच्चे, मुख्तलिफ बहने, भाई, ईमानदार, नजात याफ्ता, कलाम की सच्चाइयों से भरे हुए, दुआया जिंदगी, किरदार में पुख्ता वो बेटे बेटियां होते हैं। जिस चर्च का रूह होता है, जिस खानदान में रूह होता है, जिस जगह पर खुदा की हजूरी होती है, खानदान में वो घराने बाबरकत, वहां लड़ाइयां नहीं होती है, गालियां नहीं होती है, इल्जाम तराशी नहीं होती है। लेकिन जहां ये सब कुछ है वहां रूह नहीं, कोई और है। तो गौर करो अपनी जिंदगियों पर, अपने घरानों पर, खानदानी जिंदगी पर एक दूसरे को काटना और फाड़ना, जाके गाली गलोच, बच्चियां लोग, औरतें अपने बच्चों को इतनी बुरी गालियां देती है, झूठ बोलना बाहर भी और दूसरों के साथ भी नफरत, क्रोध, रिश्तेदारों के लिए, दूसरे भाई बहनों के लिए, ये सारी आलूदगी और नापाकी ज़हनों पर, सोचों पर और गुफ्तगू में और दिलों में मौजूद। तो ऐसी जगह पर रूह कुद्स नहीं होता, बल्कि कोई और होता है। ऐसी जगह पर किसी और का कब्जा। लेकिन जहां रूह कुद्स वहां रोशनी, हालेलुया। जहां रूह कुद्स है वहां क्या है? वहां रोशनी है। रूह कुद्स 120 की जमात पर था। अब देखिए वहां के हालात कैसे थे, क्या थे वहां के हालात? कलाम में लिखा है 120 की जमात पर रूह कुद्स की प्रेजेंस, और सब दुआ कर रहे थे गैर जुबान में, बुलंद आवाजों से। वहां की फिजा मुख्तलिफ थी, मकान हिल गए थे, जोर की आंधी का था, वहां के हालात थे, और सब कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ और चेंज हो गया था, क्योंकि वहां पर खुदा की हजूरी थी। पहाड़ पर देखिए, सुनो गौर से, मेरी तरफ देखो, मैं खत्म करने वाला हूं, मेरी तरफ देखो। पहाड़ पर खुदा ने बुजुर्ग मूसा से कहा कि इनको इकट्ठा कर और हैमों से बाहर ला कि मैं इनसे मुलाकात कर सकूं। तो फिर खुदा जब पहाड़ पर उतरा तो ऐसा मंजर है कि पहाड़ हिल रहा है, नरसिंगों की आवाज। याद रखिए, आप, मैं, हमें से कोई भी गुनाह की हालत में खुदा का बराह रास्त तो जलाल दूर की बात है, उसकी आरजी हजूरी भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आरजी ज़हूर, ये आरजी ज़हूर था। बादल में उसका आरजी ज़हूर, आग के सतून में आरजी ज़हूर। खुदा रूह है, इसलिए अपने आप को जाहिर करने के लिए वो ज़ाहिरी चीजों को इस्तेमाल करता है। ये उसकी आरजी हजूरी ज़हूर है, उसकी हजूरी का आरजी ज़हूर है। ये कभी वो झाड़ी से जाहिर करता है, क्योंकि खुदा रूह है, अनदेखा खुदा है, कोई उसे देख नहीं सकता, इसलिए जाहिर आने वाली चीजों को वो इस्तेमाल करके खुद को जाहिर करता है। क्यों करता है? ताकि हम जाने और पहचाने और गुमराह ना हो जाए कि कादर मुतलक जिंदा खुदावंद मौजूद है। वो यहाँ मौजूद है, जहाँ बादल ठहर जाता पता चल जाता खुदा यहाँ है, जहाँ अहद का सदूक होता पता चलता खुदा यहाँ है, जहाँ पर अबर होता पता चलता कि खुदा यहाँ है, ताकि हमारे ईमान बढ़ाए जाए कि खुदा हम में से किसी से दूर नहीं है। और आज यीशु मसीह में अब ना बादल की जरूरत, ना आग के सतून की जरूरत है, और ना किसी और चीज की जरूरत। बल्कि अब खुदा ने क्या कहा है? अब ना मैं बादल में तुम्हारे साथ रहूंगा, ना आग के सतून में तुम्हारे साथ रहूंगा, बल्कि मैं तुम्हारे साथ नहीं, बल्कि तेरे अंदर रहूंगा। और सोता खुदावंद बादल में नहीं, आग के सतून में नहीं। अब जगह कौन सी है? हमारे अंदर की। हमने वो गीत गाया कलाम की तैयारी के लिए, क्या गीत गाया? नदियां तू जारी कर, नदियां बहे मेरे अंदर, पाप धुले मेरे अंदर, नदियां बहे मेरे अंदर,
पाप धुले मेरे अंदर से, गुस्ल कलाम के पानी से दो, कहिए गुस्ल कलाम के पानी से दो, बन जाए मेरा दिल, क्या है, बन जाए दिल तेरा, तेरा घर ये, हाँ। सो इसलिए रूहुल कुद्स की मौजूदगी हमारी हालत और हालात को तब्दील कर देती है। आमीन। जहां रूह है वहां आजादी है। कहीं सारे जहां अगर रूह आपके घर पे है तो वहां की हालात मुख्तलिफ है, अगर रूह चर्च पे है तो यहाँ की फिजा मुख्तलिफ है, अगर रूह मेरी जिंदगी में है तो मेरी जिंदगी की हालत मुख्तलिफ। आओ जोरदार आए अपने सुरों को झुकाए।